अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Inshallah, we will begin today the sixth session of Golden Stories of Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. I'm clear, right? I'm audible. Just one of you confirm it. Yes, please. Okay. Let's Walaikum begin. salam. The Prophet gives a gift to Umar radiyallahu anhu. Ibn Umar radiallahu anhu said, Umar saw a man wearing a two-piece outfit that was made of silk. Umar radiallahu anhu later took the outfit to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, buy this and wear it when delegations of foreign people come to visit you. एक बार उमर रदियल्लाहु अन्हु एक आदमी को देखते हैं जो टू पीस आउटफिट पहना होता है जो सिल्क का बना है. जस्ट वन सेकेंड गाइस. बिस्मिल्लाह रहमान अल्लाहू अकबर. तो वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाते हैं वो और उनको कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसको पहनिए जब फॉरेन डेलीगेशंस आएंगे आपको विजिट करने के लिए तो आप ये सिल्क का टू पीस आउटफिट पहनिए. सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइज, verily silk is worn only by those who have no share of the hereafter or by those who have no religion. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रिप्लाई करते हैं कि सिल्क जो है आदमियों के लिए है, ये खासतौर से कि ये उनके लिए है जिनका कोई आखिरा में हिस्सा नहीं है या जिनके पास कोई दीन मौजूद नहीं है. Sometime after this occurred, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sent Umar radhiyallahu anhu a two-piece outfit that was very similar to the one the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had refused to buy. In that, it too was made of silk. Umar radhiyallahu anhu was confused, and so he radhiyallahu anhu said to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "You sent me this, and you said something serious about it, or about the robe that was worn by Utarid." The Prophet ﷺ replied, I sent it to you only so that you could make some money from it by selling it. That is, I did not give it to you to wear. अभी अगली बार ऐसा हुआ कि सिमिलर मटेरियल का सूट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उन्होंने उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास भेजा और फिर जब उनके पास वो गया तो वो कंफ्यूज हो गए. उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इस टाइप का सूट जब मैंने आपको कहा था तो आपका जो रिएक्शन था वो डिफरेंट था. देन आप सिमिलर काइंड मतलब व्हाई आर यू सेंडिंग द सिमिलर काइंड टू मी. तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैंने इस इंटेंशन से भेजा था कि तुम उसको बेचो एंड मेक सम मनी आउट ऑफ इट, नॉट टू वेयर इट. यानी मैंने आपको पहनने के लिए नहीं लेकिन उसको ट्रेड करने के लिए, सेल करने के लिए भेजा ताकि यू कैन मेक सम money out of it. According to one account, Umar radhiyallahu anhu gave the outfit as a gift to one of his brothers, a brother who lived in Makkah and who had not yet embraced Islam. एक और एक नरेशन में आता है कि उमर रदियल्लाहु अन्हु ने वो जो है आउटफिट वो एक अपने भाई को गिफ्ट किया जो मक्का में रहते थे और अभी तक उन्होंने दीन इस्लाम कबूल नहीं किया था. In a narration that describes another incident, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu said, while we were on a journey in the company of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I was riding on a young camel that was not tractable and obedient. It was out of my control, and I could not stop it from advancing ahead of the people. Umar radhiyallahu anhu would try to restrain the camel and drive it back out of frustration. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to Umar radhiyallahu anhu, sell it to me. Umar radhiyallahu anhu said, it is yours as a gift, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam again said, sell it to me, and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam then bought it from him. After that, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it is yours as a gift, O Abdullah bin Umar, do with it what you want. एक बार ये लोग ट्रैवल कर रहे थे तो अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि वाइल वी वर ऑन अ जर्नी इन द कंपनी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो वो जो है एक कैमल राइड कर रहे थे जो यंग कैमल था और थोड़ा सर्कस था, ओबीडियंट नहीं था, वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था. तो घड़ी घड़ी वो आगे जा रहा था और अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कंट्रोल करने के लिए उसको. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि इसे उमर तुम मुझे बेच दो. तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगेन इसरार किया कि नहीं उनको ख़रीदना है. फिर उन्होंने ख़रीदा उनसे और फिर अब्दुल्ला बिन उमर जो उमर रदियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं उनको गिफ्ट कर दिया और फिर उनसे कहा कि आप इसको डू एज यू वांट, आपको इसके साथ जो करना है वो मामला आप करें. Number of ahadith narrated by Umar radhiyallahu anhu. It was because Umar radhiyallahu anhu was a dedicated student of knowledge that he was able to later relate 539 ahadith. यानी उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है he is also one of the persons जिन्होंने जिनसे मैक्सिमम हदीस से रावी होती है.
तो ही वॉज अ वेरी ओबीडियंट एंड अ डेडिकेट स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे वो। एंड ऑलमोस्ट 539 अहदीथ नरेशंस जो है वो उनके थ्रू हैं। According to one account, however, he related a total of 537 ahadith. दूसरी जगह पे जो इसके नंबर की कंफर्मेशन है वो 537 है. Of those narrations, Imam al-Bukhari and Imam Muslim jointly related a total of 29 narrations. Imam al-Bukhari related 34 narrations from Umar radiallahu anhu that Imam Muslim did not relate. And Imam Muslim related 21 of Umar's narration that Imam al-Bukhari did not relate. The rest are found in other hadith compilation. यानी तकरीबन ये numbers हैं 29 नरेशंस इमाम बुखारी की तरफ से और 34 नरेशंस इमाम मुस्लिम की तरफ से हैं, और जो बची हुई हैं वो बाकी जो कंपाइलेशन ऑफ हदीत है उसमें मेंशन की गई हैं. मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर. It is related that on one occasion during Abu Bakr's caliphate, Uyayna bin Hisn radiallahu anhu and Al-Aqra bin Habis radiallahu anhu visited Medina in order to meet Abu Bakr radiallahu anhu. अभी हम देखेंगे वो वाला उनका साइड जहाँ पर वो एक अच्छे द मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइज़र के तौर से हमें नज़र आते हैं. तो व्हाट आर द इंसिडेंट्स या क्या क्या किस्से हुए हैं. आई एम ऑन पेज नंबर 76. हाँ, फॉर दोज हु आर फॉलोइंग द बुक आई एम ऑन पेज नंबर 76. ओके. तो एक बार ऐसा हुआ कि उयैना बिन हिस्न रदियल्लाहु अन्हु और अल-अक़रा बिन हाबिस रदियल्लाहु अन्हु आए. ये इनकी खिलाफत का किस्सा है. मदीना में पहुंचे अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को मिलने के लिए, जब भी अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत थी. वो आकर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को कहते हैं, ओ खलीफा ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, वी लिव बिसाइड अ लो मार्शी एरिया ऑफ लैंड विच कंटेन्स नो ग्रास एंड विच इज नॉट बीइंग पुट टू यूज. The land they were referring to was public property and was under the management of the Muslim government. अब ये जो दो सहाबाज हैं वो कहते हैं हम उस एरिया में रहते हैं जो कि मार्शी एरिया है और लो लाइंग एरिया है, वहाँ पर कोई घास नहीं होती है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी जो मुस्लिम गवर्नमेंट के अंडर थी. उयैना रदियल्लाहु अन्हु और अल-अक़रा रदियल्लाहु अन्हु फिर आगे बोलते हैं, If you think doing so is appropriate, perhaps you can confer ownership of the land to us so that we might plow the land or cultivate crops on it. Then from now onwards, perhaps Allah subhanahu wa ta'ala will make that land beneficial for us. वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इजाज़त दें, परमिशन दें, तो वो उसकी ओनरशिप हमको मिल जाए वो लैंड की, तो हम लोग उसमें थोड़ी खेती बाड़ी करेंगे और इससे ये होगा कि वो लैंड हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो जाएगी. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu said to the people of in his company, if the land is indeed marshy and is not being used for any benefit, what have you to say regarding what these two men have said? वो कहते हैं अगर वो लैंड जो है वो मार्शी है, उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो जिस तरीके की रिक्वेस्ट ये दोनों बंदों ने की है, तो आप लोगों का क्या इरादा है. वो अपने लोग जो उनके जो होते थे कंपनी में उनको पूछा उन्होंने, यानी जो हर एक रूलर की सीनेट होती है ना, उनका एक काउंसिल होता है, तो उनसे वो मशवरा कर रहे हैं. They replied, we think that you should confer ownership of the land to them. Perhaps from this day onwards, Allah subhanahu wa ta'ala will make the land useful. तो उन्होंने कहा कि आपको जो है ओनरशिप ये दो आदमियों को दे देनी चाहिए, कि हो सकता है कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और अल्लाह ताला उसको यूज़फुल करना चाहते हैं. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu conferred ownership of the land to them, writing down a document to that effect. However, he radiallahu anhu stipulated that Umar bin al-Khattab radiallahu anhu should first bear witness to that document or to that deed of ownership. अभी अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जो है वो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ओनरशिप का, उनके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो दोनों सहाबास पे. तो फिर उन्होंने डिसाइड ये किया कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जो है ना वो पहले विटनेस गवाह बने. अब देखिए हर चीज़ का तरीका कितना ज़बरदस्त चल रहा है, सुभान अल्लाह, कि कोई आ रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके, ही इज़ द हाकिम अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, ये आकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सलाह मशवरा कर रहे हैं, पॉजिटिवली ले रहे हैं, और जो उनकी काउंसिल है वो भी इसको एक्सेप्ट कर रही है, फिर वो लोग राइटिंग में कर रहे हैं. यानी कितना तरतीब से, कितना प्रोफेशनल एंड द वे इट इज़ सपोज टू बी डन. जैसे हमारी बुक्स इस चीज़ को इनकरेज करती है कि क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या तरीकाकार होना चाहिए, उस तरीके से चल रहे हैं. कोई भी हबड़ धबड़ अनकेप्ट और बिल्कुल कहते हैं ना कि नो देर इज़ नो प्रॉपर ऑर्डर, वैसा वाला मामला नहीं है. एवरीथिंग इज सो ऑर्डरली मेंटेन्ड. अब उमर रदियल्लाहु अन्हु however was not present, and so Uyayna radiallahu anhu and Al-Aqra radiallahu anhu eagerly went out in search of Umar radiallahu anhu, excited at the prospect of becoming owners of a property that they could use for farming. When they reached Umar radiallahu anhu, they saw that he was busy anointing one of his camels with some tar. अब ये लोग जो है उस वक्त
उमर रदियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं थे। तो ये दोनों सहाबाज जो हैं वो उमर रदियल्लाहु अन्हु की तलाश में निकले, क्योंकि दे आर वेरी एक्साइटेड, अभी उनके नाम पर एक प्रॉपर्टी होगी एंड उनके हालात ठीक हो जाएंगे, तो दे देमसेल्व्स दे वेंट इन सर्च ऑफ उमर रदियल्लाहु अन्हु। उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है उस वक्त अपने कैमल्स को अटेंड कर रहे थे। दे सेड वेरीली अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु वांट्स यू टू बेयर विटनेस टू द कंटेंट्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट और ऑफ दिस डीड ऑफ ओनरशिप, शैल वी रीड इट फॉर यू और विल यू रीड इट। अब ये बड़े एक्साइटेडली उनके पास पहुंचे, उनको बताया कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जो है वो आपको एज अ विटनेस बना के ये डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए आपका रिक्वेस्ट हम चाहते हैं, क्योंकि ये ओनरशिप जो है फिर हमारे नाम पे हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि हम रीड करें या आप खुद ये डॉक्यूमेंट रीड करोगे? You see the condition I'm in now, that is my hands are dirty and I'm busy working. So if you want, you can read it to me. And if you want, wait until I'm finished with the job and I will read it. I will read it aloud to you. तो वो कहते हैं कि आपने देखा हमारा मेरी अभी कंडीशन है कि मेरे हाथ जो हैं वो डर्टी हैं, ख़राब हैं, तो मैं वर्क कर रहा हूँ, आप मेरे लिए पढ़ लीजिए, या फिर आप वेट करिए, मैं अपना काम ख़त्म करके मैं खुद रीड करूँगा। Apparently they were eager to conclude their business as quickly as possible, so they said rather we will read it. तो उन दोनों ने डिसाइड किया, क्योंकि उनको जल्दबाजी थी ये पूरा मामला ख़त्म करने का, तो वो कहते हैं हम लोग पढ़ लेते हैं। After Umar Adilanu listened to them reading the document, he grabbed it from their hands, spit on it, and erased what was written on it. The two men expressed their extreme displeasure and even spoke vile and harsh words to Umar Adilanu. अब जैसे ही उन्होंने डॉक्यूमेंट ख़त्म किया पढ़ना, तो उमर रदियल्लाहु ने उनके हाथ से वो डॉक्यूमेंट छीना, उसके ऊपर स्पिट किया, जो लिखा था उसको इरेज कर दिया, और इस पर वो जो दो आदमी थे वो बहुत नाराज़ हुए, उन्होंने कुछ हार्श और एरोगेंट वाइल्ड वर्ड्स भी यूज़ किए उनके लिए। For his part, Umar Adilanu replied, verily the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would provide you with wealth in order to encourage you to become sincere Muslims. Back then, Islam was weak as a force on earth. Today, on the other hand, Allah subhanahu wa ta'ala has honored Islam and made it strong. So go and work hard. This either means work hard at earning a lawful living or fight hard alongside Muslim soldiers, and in that way you will earn wealth in a lawful manner by gaining a share of war booty. अब वो क्या कहते हैं? उमर रदियल्लाहु इज जस्टिफाइंग हिज एक्शंस। क्यों उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर वो तुमको कुछ वेल्थ प्रोवाइड करते थे ताकि तुमको एनकरेज करने के लिए कि तुम एक सिंसियर मुस्लिम्स बनो। कहते हैं उस वक्त इस्लाम जो था वो वीक था, लेकिन आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस्लाम को इज्जत दी है, ऑनर दिया है और बहुत ताकत दी है। तो खुद जाओ, वर्क करो, हार्ड वर्क करो और अपने लिए एक हलाल इनकम, एक हलाल लिविंग खुद तलाश करो। और दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये भी है कि आप जाओ जिहाद के लिए जाओ, ओके, मुस्लिम सोल्जर्स के साथ कंधे से कंधा लगा के लड़ो, और फिर उसके बाद आपको जो माले गनीमत में से हिस्सा मिलेगा वो आपके लिए वेल्थ होगा, जो कि लॉफुल मैनर है। May Allah not take care of you if you take care of livestock instead of going out to fight in a way of Allah subhanahu wa ta'ala। यानी उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपका ख्याल नहीं रखेंगे ताकि आप पीछे अपनी जो भेड़ बकरियां नाम है, आपकी जो लाइफ स्टॉक है, आप उसका ख्याल रखो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह। यानी कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं, उन्हें चाहिए होता है कि शॉर्टकट मिल जाए, आसानी से उनका काम हो जाए और वो शॉर्टकट ले लें, अपनी जान जो है वो जोखिम में ना डालें, जिहाद के लिए ना जाएं, मेहनत मशक्क़त ना करें, उस कैटेगरी में हिलाबाजी करके वो माल हासिल करना चाहते हैं। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन कंडेम्ड बाय उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु। The two men went to Abu Bakr radiallahu anhu, complaining and saying to him, by Allah, we do not know who the Khalifa of the Muslim nation is, you or Umar. Abu Bakr radiallahu anhu replied, no, had he wanted, he would have been the Khalifa. अभी वो लोग तो नाराज़ हो गए, भड़क गए कि भाई हमने तो खलीफा को मना लिया था, काउंसिल हमारे फेवर में थी, ये एक बंदा हमारे खिलाफ हो गया और हमारे हाथ में जो इजी माल आ रहा था वो चला गया। तो ऑफ कोर्स दे आर कंप्लेनिंग एंड दे आर एजिटेटेड एंड अनॉयड, राइट? सो फिर क्या कहते हैं वो? फिर वो कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि आप हो खलीफा या उमर रदियल्लाहु अन्हु, क्योंकि सारे लोगों की ओपिनियन एक तरफ, लेकिन एक उमर रदियल्लाहु अन्हु की ओपिनियन जो थी वो ऑपोजिट पे थी और उनकी ओपिनियन को वेटेज दिया जा रहा था। तो ही इज वंडरिंग, ही सेड असल में खलीफा कौन है, आई डोंट नो, आप हो कि वो हो। उस पर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नहीं, अगर उमर रदियल्लाहु अन्हु चाहते तो वो खलीफा बन सकते थे, बिकॉज वी नो, वी हैव रेड दिस इंसिडेंट जब हमने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की बायोग्राफी की थी कि जब वो खिलाफत, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए थे, फिर उसके बाद कैसे डिसाइड हो रहा था कि हु विल बी द नेक्स्ट खलीफा एंड ऑल, तो वी नो ऑफ दैट इंसिडेंट वेरी वेल। तो उस वक्त सारों ने जो सजेस्ट किया था वो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को ही सजेस्ट किया था। एंड देन
यानी अगर उमर इब्न खत्ताब वांटेड द पावर, he would have he would have given his name rather than giving Abu Bakr Siddiq रदियल्लाहु अन्हु's name. तो वो chronological order जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, या जो हत्ता अल्लाह ताला की जो मर्जी थी, उस हिसाब से ही वो लोग चल रहे थे. दे आर नॉट पावर हंग्री, दे आर नॉट चेयर हंग्री, यानी उनको पावर या फेम की कोई उनकी जो है वो दीन की जो तलाश थी, आखिरा की तलाश थी, दुनिया की तलाश नहीं थी. और उसी लिए वो जो है पैसे के पीछे या दुनिया के पीछे नहीं जाते थे. सो दिस इज व्हाट अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु also clarified कि अगर उमर इब्न अल खत्ताब चाहते तो he would have referred his name, but he did not do that. They are following the commands of Allah Azza wa Jal. They are following the will of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. By this time, Umar radiallahu anhu too had approached the company and he was furious. अब जो है उमर रदियल्लाहु अन्हु उधर पहुंच गए थे उस जमात में, और as it is he was very angry. He radiallahu anhu stood over Abu Bakr radiallahu anhu and said, "Tell me about the land that you have given these two men. Does it belong to you specifically or is it jointly owned by all Muslims?" अब वो जो है वो नाराज हो गए हैं, and he's saying that ये जो लैंड है जिसको आपने इरादा किया ये दोनों आदमियों को देने का, क्या ये आपकी जॉइंटली लैंड है या प्योरली मुस्लिम नेशन की लैंड है? Abu Bakr radiallahu anhu replied, it belongs to all Muslims. Umar radiallahu anhu said, then what prompted you to give it specifically these two men instead of the Muslim masses? वो उनसे पूछ रहे हैं एकदम बेबाक होकर कि फिर आपको किसने अथॉरिटी दिया कि वो लैंड, वो प्रॉपर्टी जो पूरी मुस्लिम उम्मा को बिलोंग करती है, आप स्पेसिफिकली ये दो आदमियों को क्यों दे रहे हो? Abu Bakr radiallahu anhu said, I consulted the man who were with me at the time and they suggested that I give the land to these two men. वो कहते हैं मेरा ये अकेले का नहीं था डिसीजन, मैंने लोगों से अपने जो काउंसिल है उससे कंसल्ट किया और ये हमारा बोलते ना जमा डिसीजन था. Umar radiallahu anhu said, even if you consulted the man who were with you at the time, would all Muslims be pleased with their suggestion? Abu Bakr radiallahu anhu said to Umar radiallahu anhu, I indeed told you that with your strength you are more suited to this job, to the job of being Khalifa than I am, but you forced it upon me. अभी उमर रदियल्लाहु अन्हु फिर से उनको कह रहे हैं कि आप इन ये जो अपनी काउंसिल या जो है उनको आपने कंसल्ट किया, मगर क्या इनके सजेशन से सारी मुस्लिम उम्मा खुश होती या आपके डिसीजन से? इस पर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उमर रदियल्लाहु अन्हु को कि मैंने आपसे कहा था कि जिस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ है आप इस खलीफा के जॉब के लिए ज़्यादा सूट करते हैं, बट यू फोर्स्ड इट अपॉन मी, आपने मुझ पर फोर्स किया कि मैं खलीफा बनूं. The story leaves no room for doubt that during the era of the rightly guided Khalifas, the Islamic government was run based on the principle of mutual consultation. अब ये सारी डिस्कशन से हमें एक बात पता चलती है कि उस टाइम का जो तरीकाकार था इस्लामिक गवर्नमेंट को रन करने का, वो बेस्ड था ऑन म्यूचुअल कंसल्टेशन, यानी सलाह मशवरा करके सारे नुक्तों को देखकर दे यूज्ड टू कंसल्ट ईच अदर, और इसमें अपनी ईगो को वो नहीं लाते थे. इट इज़ प्योरली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल एंड सेकेंडली फॉर द सेक ऑफ द वेलबिंग ऑफ द मुस्लिम उम्मा, यानी एक मासेस जो मेन उम्मा, जो मेन कम्युनिटी, जो मेन नेशन है, उसका फ़ायदा हो, इसको मद्देनजर रखते हुए डिसीजंस लिए जाते थे. अपना पर्सनल मफाद, अपनी पर्सनल ईगो को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था. As Khalifa, Abu Bakr radiallahu anhu, as well as Umar radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu, and Ali radiallahu anhu, would consult Muslims about all matters, big and small. And he radiallahu anhu would make a final decision about any given issue only after he first consulted. If not all Muslims, then at least his most trusted advisors, the most trusted of them being Umar bin al-Khattab radiallahu anhu. यानी उनका तरीकाकार यही होता था कि एटलीस्ट वो जो अपनी इमीडिएट काउंसिल है विच कंप्राइजेज ऑफ दिस 4 खलीफाज, ये आपस में ज़रूर ज़रूर डिस्कशन करते थे. और फिर उसके बाद छोटे मैटर हो बड़े मैटर हो, जो खलीफा होता थे उसके उस टाइम के, वो डिसीजन उनका प्योरली कंसल्टेशंस पे बेस्ड होता था. दिस इज़ हाउ दे यूज्ड टू डू. और उसमें से सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टेड होते थे वो थे उमर बिन अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु. Displaying mental dexterity. Abhi, before I go to that chapter, let me just ask and discuss few things कि हम लोग जो हैं अभी हम हमारे लेवल पे, फॉर एग्जाम्पल वी एज वाइफ्स, वी एज मदर्स, हम लोग जो हैं अगर कोई भी डिसीजन, बड़ा से बड़ा छोटे से छोटा डिसीजन लेते हैं, कई बार वी सी के हम लोग हस्बैंड्स को कंसल्ट करते हैं, हस्बैंड्स हमको कंसल्ट करते हैं. दैट इज़ एन आइडियल सिचुएशन, बट देर आर मैनी हाउसेज सैडली husbands are the sole decision maker or else wives are the sole decision maker.
that is not something that we should do. To have a very amicable and a very pleasing environment in the house, it is always better कि हस्बैंड वाइफ्स एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करें. अभी हमने देखा कि यही तरीका था साहबाज का, यही तरीका है दीन इस्लाम का, तो वी शुड डू इट. और फिर उसके बाद जब हमारी औलाद भी एक एज पे पहुंचती है जहाँ पर उनकी भी एक सोच जो है वो उसमें क्लैरिटी आ जाती है, तो हमें अपने बच्चों के साथ भी डिस्कस करना चाहिए जो मैटर्स उनको अफेक्ट करें. ठीक है, वी हैव टू फॉर्म कंसल्टेशन काइंड ऑफ अ थिंग विद इन आवर फैमिली सर्कल, कि कोई ऐसी बात हो कि फॉर एग्जाम्पल हॉलीडे पे कहाँ जाना है, या फॉर एग्जाम्पल सम फर्नीचर दैट यू नीड टू बाय फॉर द हाउस, या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो सबकी, जो विद इन द फैमिली मेम्बर्स, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को अफेक्ट करेगा, उनकी लाइफ्स को अफेक्ट करेगा, तो यू शुड टेक डिसीजंस. इनफैक्ट बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस. दे फील important, they feel that they are also holding an important position in the family. अगर हम इसको अपनी पार्ट ऑफ तरबिया नहीं बनाते हैं और उनको हम, ये बच्चा है इसको समझ नहीं है, दैट मीन्स वी आर नॉट बिल्डिंग द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ चाइल्ड. हमें हमारे बच्चों की ओपिनियंस को ऑनर भी करना है, अगर वो सही है उनको प्रेज करना है, एनकरेज करना है, अगर वो गलत है तो उनको रेक्टिफाई करना है. यू हैव टू बिल्ड अ प्रोसेस वेर इन दे आर एबल टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन. उनको डिसीजंस लेना है और उनकी ओपिनियंस को भी मैटर करवाना है. तो इससे आप जो है अपनी तरबिया में अपने बच्चों की स्पाइन बिल्ड करेंगे. बिकॉज मेनी अ टाइम्स दिस इज व्हाट आई हैव सीन, दैट बड़े बड़े लड़के हैं, इन अ लॉट ऑफ काउंसलिंग आर हैपनिंग दिस डेज, जहाँ पर वाइफ्स जो हैं, यंग वाइफ्स आर कंप्लेनिंग दैट देयर हस्बैंड्स आर ममाज बॉय. आई थिंक अजान हो रही है, वी नीड टू पॉज अ बिट हियर. ओके. डिस्प्लेइंग मेंटल डेक्सटेरिटी. अब डेक्सटेरिटी को ऐसे बता सकते हैं, स्किल्स इन परफॉर्मिंग टास्क, यानी ये वो क्वालिटी है जिसमें आप अपने हैंड्स से जो काम करते हो उसकी स्किल्स को आप डिस्प्ले करते हो. सो दैट इज mental dexterity. Abdullah bin Umar radiallahu anhu reported that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam once said to his companions, "Verily, among trees there is one particular tree whose leaves do not fall, and it is similar to a Muslim. Tell me which tree that is." अब्दुल्ला बिन उमर से रिपोर्ट होती है ये हदीत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने साहबा से पूछा कि डेफिनेटली एक झाड़ है जिसके पत्ते जो हैं वो गिरते नहीं हैं, और वो झाड़ जो है मुस्लिम्स की तरह है, सिमिलर टू मुस्लिम्स. तो उन्होंने पूछा, बताओ मुझे कि वो झाड़ कौन सा है. Here, the Prophet ﷺ presented a riddle of sorts, thus providing the companions an opportunity to display their mental dexterity. The companions tried to figure out which tree was similar to a Muslim and in which way. They all focused on trees that thrived in the desert. As for Abdullah bin Umar, he later recounted what happened next. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाने का तरीका ऐसा होता था कि कई बार वो जो है ऐसा रेटोरिक क्वेश्चंस देते थे या रिडल के हिसाब से कोई क्वेश्चन देते थे जिससे कि माइंड जो है वो एंगेज हो जाते हैं, एंड देन इट बिकम्स इंटरेक्टिव, इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, और सब लोगों का जो अटेंशन है वो ग्रैब करते थे. दीज आर द क्वालिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ टीचिंग. ओके, तो उस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू यूज दिस टेक्निक्स जिससे कि वो लोगों का अटेंशन ग्रैब करते थे, उन लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करते थे, और एंड यूज्ड टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव एंड एक्साइटिंग फॉर his students, for his sahabas, for his people. अब कंपेनियंस जो है वो लग गए सोचने में कि भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, विच इज दिस ट्री विच इज सिमिलर टू मुस्लिम्स. फिर अगेन अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु आगे कहते हैं, when the people present focused on the trees of the desert, it occurred to me that Prophet sallallahu alaihi wasallam was referring to the date palm tree. But I was shy, not wanting to speak out of turn and not wanting to put myself forward in the presence of so many eminent companions. Finally, giving up, the companion said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, tell us which tree it is. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, it is the date palm tree. अभी अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है उनके जहन में आया कि ये जो सवाल या रिडल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है इसका जवाब जो है डेट पाम यानी खजूर का झाड़ हो सकता है. लेकिन वो बहुत शाय फील कर रहे थे, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि वो इतने जो बड़े बड़े सहाबाज मौजूद थे उनकी कंपनी में उनसे पहले ये जवाब दे, तो ही वॉज फीलिंग शाय, विच इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम विद लॉट ऑफ पीपल अराउंड हियर. यानी हम लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के शिकार हैं कि वो बहुत शाय फील करते हैं या वो बहुत उनमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो डाउटफुल रहते हैं, एंड फॉर वट एवर एक्स वाई जेड रीज़न वो बोल नहीं पाते. दिस इज़ वन ऑफ द फ्लॉज दैट वी हैव एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट.
और ये हमारा एक एरिया है जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चों के अंदर, हम हमारी सिस्टर्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें, ताकि वो जो एक बहुत बड़ा काम जो है हमारे ऊपर, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी जो है कि हम आगे दीन और दावा का काम कर सकें, उस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उनको पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्पार्ट कर सकें। तो ये भी एक हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को इस चीज़ के लिए भी बिल्टअप करा जाएगा। एंड कोशिश तो यही हमारी कि हम सब जो हैं, जितने भी माशाल्लाह स्टूडेंट्स हम एक साथ जुड़े हैं, वो सारे इंडिविजुअली एक एक दिन का दाई बने, एक एक टीचर बने, और जाके ये इस्लाम का, दीन का जो काम है वो बाखूबी निभा सकें, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी लैक, और ये हमको इस एरिया में बहुत वर्क करना है। सो इंशाल्लाह वी आर सीइंग लाइक अभी, क्योंकि ये जिस तरीके से अब्दुल्ला बिन उमर की कंडीशन हुई, हिज आंसर वाज करेक्ट, व्हाट ही थॉट वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, बट बिकॉज ऑफ फीलिंग शाय, बिकॉज ऑफ lack of confidence, he didn't say it. So उन्होंने जवाब नहीं दिया। फाइनली मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो डेट पाम है। I afterwards told my father, Umar radiallahu anhu, about the answer that had occurred to me, and he radiallahu anhu said, for you to have said the answer is something I love more than for me to have such and such. He obviously mentioned valuable things to indicate just how much he wished that Abdullah radiallahu anhu had given the right answer. Now we being पेरेंट्स, हमारे अंदर भी ये होता है, कई बार हम चाहते हैं हमें ये नज़ारा देखने को मिले कि हमारे बच्चे जो हैं वो सही आंसर दें, उनको इस तरीके से कॉन्फिडेंटली बोलता हुआ जब हम देखते हैं, तो हम अगर कोई आंसर दें, उतनी खुशी हमको नहीं होगी जितनी हमारी औलाद वो सही आंसर दे। तो उसी तरीके से इट वाज सच ए नेचुरल फादरली फीलिंग दैट उमर रदियल्लाहु अन्हु हैड। ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग टू अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु कि मुझे बहुत खुशी होती अगर तुमने ये जवाब दिया होता, यानी मेरे बोलने से ज्यादा भी तुमने अगर इस चीज को बोला होता तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड रिमाइंडर फॉर अस कि हम लोगों को अपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, और हमारे बच्चे हमको देखकर कॉपी करते हैं। अगेन एंड अगेन आई रिपीट दैट। तो अगर हम ही अंडर कॉन्फिडेंट और इस तरीके से, मैं इसको डिस्प्रेस्ड शाय बोलूंगी, आई दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ प्रेस्ड शाय बाय द वे, सो आई कॉल इट अ डिस्प्रेस्ड शाय। तो ये शाइनेस का काम नहीं है सही। हमें जो है कॉन्फिडेंस जहाँ पर होना चाहिए वहाँ होना चाहिए, और ये सीखने सिखाने की बात चल रही है, एजुकेशनल पर्पसेस है, तो लाजमी यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि यू टॉक एंड यू आर एबल टू स्पीक। ये भी एक अल्लाह की तरफ से स्किल है, ग्रेस है, इसके लिए भी दुआ किया करें, एंड अपने लिए भी और अपनी औलाद के लिए भी। More beloved than my own self. It is related that Abdullah bin Hisham radiallahu anhu said once, when we were with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he took Umar bin al-Khattab radiallahu anhu by his hand. Umar radiallahu anhu then said to him, O Messenger of Allah, you are indeed more beloved to me than all things except for my own self. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, not by the one who has my soul in his hand, you will be truly and completely believe until I become more beloved to you than your own self. Umar radiallahu anhu said, now by Allah, you are indeed more beloved to me than my own self. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, now you do have complete faith, O Umar radiallahu anhu. Now, ये हमने अगेन इट्स अ रिमाइंडर, एंड दिस होल प्रोसेस इज अ रिमाइंडर फॉर अस। तो अगेन इस हदीस में हम लोग देखते हैं कि एक बार अब्दुल्ला बिन हिशाम रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न खत्ताब का हाथ पकड़ा और उनको लेकर गए, और फिर उनसे कहा कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, उमर रदियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जो हैं मुझे बहुत चाहते हैं, सब चीज़ों से ज़्यादा मुझे आपसे मोहब्बत है, एक्सेप्ट फॉर माई ओन सेल्फ, यानी अपनी ज़ात से कम। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक कि तुम मुझसे अपने आप से भी ज्यादा मोहब्बत ना करो, तब तक कि तुम्हारा जो ईमान है वो कामिल नहीं होता। उसके बाद उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि वल्लाही, अभी आप मुझे अपने आप से भी, अपनी ज़ात से भी ज़्यादा चाहते और पसंदीदा हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंफर्म किया कि अब आपका जो ईमान है वो कंप्लीट है। तो यानी वी आर सपोज टू लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोर देन आवर फैमिलीज, मोर देन आवर चिल्ड्रन, मोर देन आवर सेल्फ्स, तब जाके हमारा ईमान जो है वो कामिल होता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यानी बोलने के लिए या कहने के लिए शायद हम कर लें, लेकिन इस पे अमल करना या इस पे खरा उतरना इज़ रियली रियली वेरी वेरी
टफ, आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल बट इट इज टफ, क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अपने ज़ात से मोहब्बत करते हैं, हम सबसे ज़्यादा औरों में अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। तो ये सब बहुत, मे अल्लाह नॉट पुट अस इन एनी आजमाइश और ट्रायल, लेकिन अगर हम क्लेम करें कि हमें हमारा ईमान जो है वो कंप्लीट करना है, टोटल ईमान पे लेवल पे पहुंचना है, then these are the conditions that we have to fulfill, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us hidayah and tawfiq to reach that stage. Glad tidings of a castle in paradise. The Arabic word ghaira has no equivalent in English language. Ghaira is a positive trait, therefore, the word jealousy, which has pejorative connotations, does not do it justice. ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अरेबिक टर्मिनोलॉजी है कुरानिक की ख़ास तौर से, तो उसकी इक्विवेलेंट ट्रांसलिट्रेशन इन इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज में नहीं मिलती। जैसे कि हम बरका, आफिया, ये सारे वर्ड्स जो हैं, और बहुत सारे इसके तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम इक्विवेलेंट वर्ड्स इन इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज में ढूंढ नहीं सकते हैं। इट कैन नॉट डू जस्टिस। उसी तरीके से अरबिक का एक वर्ड है गैरा, इसका इक्विवेलेंट कोई भी नहीं है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रेट। The phrase sense of honor does not comprehensively cover all of the meanings of गैरा। यानी सेंस ऑफ ऑनर, हम कहते हैं ना इसमें गैरा नहीं है, हम उसको सिर्फ एक ऑनर या रिस्पेक्ट या डिग्निटी के साथ हम नहीं इक्वलाइज कर सकते। इट इज़ मोर, इट्स अ वेरी मैक्रो टर्म, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। So, what does ghaira mean? Simply put, if a person has ghaira, he will guard his honor with vigilance, with watchfulness, and with a kind of jealousy that is commendable. यानी अभी देखें आप, एक गैरा को एक्सप्लेन करने के लिए कितने सारे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मसलन पहला, ऑनर विद विजिलेंस, यानी अपनी इज्जत, अपनी अजमत, उसके लिए वो बड़ा कॉन्शियस है, बड़ा वॉचफुल है। उसके बाद एक कमेंडेबल जेलसी भी होनी चाहिए। इसको हम लोग एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे एक हस्बैंड है, तो वो अपनी वाइफ को किसी गैर महरम के सामने अगर उन्होंने जाना है तो ही विल कवर हर, उसके अंदर एक जेलसी होगी विच इज़ अ पॉजिटिव प्रेज्ड जेलसी, ठीक है, होनी चाहिए। और वो गैर महरम के सामने अपनी वाइफ को डिस्प्ले नहीं करेगा, वो उसकी गैरा के लिए ज़रूरी है, उसकी ऑनर के लिए ज़रूरी है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव कमेंडेबल जेलसी। इसके ऑपोजिट, अगर एक आदमी है जो अपनी वाइफ या अपने जो उनके अंडर जो महरम्स हैं उनको डिस्प्ले करता है गैर महरमों के सामने, तो उसको क्या टर्मिनोलॉजी दी गई है इस्लाम में? इट इज़ अ वेरी डिसलाइक टर्म, डयूस। उसकी उसकी टर्मिनोलॉजी दी गई है कि वो उस कैटेगरी में जाता है जिसके अंदर कोई गैरा नहीं, कोई शर्म हया नहीं, कोई ऑनर नहीं, ठीक है। तो गैरा को एक्सप्लेन करने के लिए वी आर यूजिंग सो मेनी डिफरेंट terminologies. One does not have ghaira, therefore, if one does not mind one's wife or one's daughter going out in public in tight or otherwise revealing clothing, and one doesn't have ghaira when one is happy and proud to see others stare lustfully at one's attractive and yet improperly dressed wife, यानी जिसके अंदर गैरा ख़त्म हो जाती है, उसकी आंखों के अंदर वो शर्म हया ख़त्म हो जाती है, तो वो माइंड नहीं करता कि उसकी बहन या उसकी वाइफ नौज़बिल्ला किसी गैर आदमी के साथ बैठी है और वो गैर आदमी उसको लस्ट भरी आंखों से देख रहा है, सो ही डजंट माइंड इट। लेकिन जिसमें गैरा होती है वो इस चीज़ को एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दैट इज़ अ पॉजिटिव कमेंडेबल जेलसी देयर, और उसकी गैरत मौजूद है। यानी the following hadith sheds further light on the meaning of the word ghaira. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "In a dream, I saw myself entering paradise, and then suddenly coming across a Rumesa, who was the wife of Abu Talha. When I heard the sound of footsteps, I asked, 'Who is that?' He, here he probably refers to the angel Jibril or to some other angel, said, 'That is Bilal radiallahu anhu.' And I saw a castle, and in its courtyard there was a young woman. I asked, 'To whom does this castle belong?' They probably refers to a group of angels that were with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Said it belongs to Umar radiallahu anhu. I wanted to enter it in order to have a look inside, but then I remembered your ghaira. Here the Prophet sallallahu alaihi wasallam was of course addressing Umar radiallahu anhu. ये किस्सा इसराइल मेराज का है। One day, no, I think this is not of Israel Miraj. This is in a dream. ये ड्रीम का है। I saw myself entering a paradise. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि वो जो है एक बार जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। उधर उन्होंने क्या देखा? और रुमैसा कौन थी? वाइफ ऑफ अबू तलहा थी। फिर उन्होंने कुछ फुटस्टेप्स
किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। उन्होंने पूछा, कौन है ये? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग्रुप ऑफ एंजल्स हैं, यानी प्रॉबेबली या तो वो एंजल जिब्रिल या कोई दूसरे फरिश्ते हैं। तो उन्होंने जवाब दिए कि ये बिलाल रदियल्लाहु अन्हु है। फिर उन्होंने एक कैसल देखा और उसके कोर्टयार्ड में एक यंग वुमन देखी। फिर उन्होंने एक पूछा कि ये किसको बिलोंग करता है? तो उन्होंने कहा ये कैसल जो है ये उमर रदियल्लाहु अन्हु को बिलोंग करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एंटर होना था, लेकिन उनको गैरत याद आ गई। तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर नहीं हुए। किसकी गैरत याद आ गई? उमर रदियल्लाहु अन्हु का। यानी वी आर लर्निंग अबाउट द ट्रेट, ये जो कमेंडेबल प्रेस जेलसी है ना, उसके बारे में जिक्र हो रहा है कि दिस वॉज देयर अमंग दिस पीपल ऑल्सो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में और ये सहाबाज के बीच में, इनके बीच में भी वो पर्दा ऑफ गैरा वॉज मौजूद। और ये एक कमेंडेबल ट्रेट है, यानी इसका होना, इफ वी से वी आर बिलीवर्स, इसका होना हमारे लिए ज़रूरी है। एंड वी आर trying to copy these people because these are the people who with whom Allah was pleased. These are the people who were promised Jannah. तो इनकी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी हर चीज़ों को हमको कॉपी करना है। इसीलिए हम ये चीज़ें डिटेल में पढ़ रहे हैं और इसको डिस्कस कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हदीस से हमको क्या पता चल रहा है कि उमर रदियल्लाहु के अंदर जो थी वो गैरा मौजूद थी। ऑफ कोर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे लोगों के अंदर ये पॉजिटिव ट्रेट्स अच्छी तरह से अच्छी क्वांटिटी में मौजूद थे एंड दे यूज्ड टू डिस्प्ले इट क्वाइट ऑफन। तो ही सॉ दैट दिस इज द कैसल। उन्होंने एंजल्स से, फरिश्तों से कंफर्म किया ये कैसल किसका है, ये उमर रदियल्लाहु का है। और उनको एंटर होना था, लेकिन फिर ही रिमेंबर्ड what he remembered, the ghaira of Umar radiallahu anhu. That's why he stopped. May my father and mother be sacrificed for you, O Messenger of Allah, exclaimed Umar radiallahu anhu. And should I be so foolhardy and ungrateful as to feel ghaira against you? जब ये उमर रदियल्लाहु अन्हु ने सुना, तो एज यूजुअल जो उनका अरबिक एक्सप्रेशन होता है कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं ओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं इतना, यानी आई एम नॉट अनग्रेटफुल और नॉट दैट मच ऑफ अ फूल कि मैं आपके अगेंस्ट में कोई गैर है, यानी ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिज बीइंग पैली विद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनके साथ जो है उनकी क्लोजनेस इतनी है, ही डजंट माइंड इट। यानी अब आप देखें ये दोनों एक दूसरे का मान किस तरीके से रखते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज स्टॉपिंग थिंकिंग ऑफ द गैरा ऑफ उमर रदियल्लाहु अन्हु, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी उमर रदियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि मेरा आपके साथ इतना क्लोजनेस है कि आई वुडंट हैव फेल्ट दिस। Subhanallah, this shows the kind of feelings that they had for each other, और जिस तरीके से वो एक दूसरे के साथ बहुत closeness feel करते थे। The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam prays for Umar radiallahu anhu. On one particular occasion, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw Umar radiallahu anhu wearing a white garment, he sallallahu alaihi wasallam asked, "Is your garment new, or has it just been washed so that it looks new?" Umar radiallahu anhu replied, "Yes, it has just been washed." The Prophet sallallahu alaihi wasallam then prayed for Umar radiallahu anhu, saying to him, "May you wear new clothing, may you live commendably, and may you die a martyr." ब्यूटीफुल दुआ माशाल्लाह। एक बार उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो वाइट कपड़े पहन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये न्यू गारमेंट है या धुला हुआ है जो न्यू लग रहा है? तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कंफर्म किया कि ये धुला हुआ गारमेंट है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी कि आप नए कपड़े पहनो, आप बहुत अच्छी प्रेज्ड ऑनरेबल लाइफ जियो, और आप एज अ शहीद, आपको शहादत नसीब हो। गैदरिंग द कुरान इन अ सिंगल बुक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्शन जो उमर इब्न खत्ताब के थ्रू हुआ है, जो कि उन्होंने कुरान को एज अ सिंगल बुक कंपाइल किया, which is a greatest blessing for all of us, alhamdulillah, and we are indebted to Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu for this wonderful job. इसके बारे में we will discuss now. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam died, the Quran was not gathered in a single book. यानी हमें पता है कि एक तो मेमोरीज में था साहबाज की, दूसरा डिफरेंट डिफरेंट लीव्स पे, कभी बोन्स पे, कभी बार्क पे, यानी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ये लिखा हुआ था, और ये एक कंपाइल्ड कॉम्प्रिहेंसिव बुक की शक्ल में नहीं था। तो कभी कोई लेदर पे, कभी कोई स्किन पे, कभी कोई बोन पे, कभी कोई बार्क पे, इस तरीके से था। सो कुरान वॉज इन डिफरेंट पार्ट्स of it were on different people, on leather parchments, on bones, and in the hearts of men. Thus, when many companions who had the Quran memorized died on the day of Yamama, day of Yamama में
बहुत सारे सहाबाज जो हैं वो शहीद हुए थे। अब ये था कि जिन्होंने हिफ्स किया हुआ था तो उनके साथ वो हिस्सा जा रहा था, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस था। और इसी लॉस को कवर अप करने के लिए या इसको फुलफिल करने के लिए उमर इब्न खत्ताब टुक द इनिशिएटिव। Their loss signified much more than the departure of the noble and the pious Muslims. It signified a possible tragedy that would, if it occurred, outweigh all other tragedies, the loss of the Quran. यानी जानों का तो नुकसान बेशक हुआ था, सहाबाज शहीद हुए, ऑफ कोर्स इट्स अ लॉस, बट उससे भी कई गुना ज्यादा लॉस ये था कि वो हुफाज थे, वो हाफिज थे, उन्होंने मेमोराइज किया हुआ था, और उनके साथ वो मेमोराइज्ड कुरान भी लॉस हो गया था। तो वो जो था, द लॉस ऑफ कुरान वाज वेरी वेरी हैवी, or at least the loss of some of its verses and chapters. This is because the Prophet's companions were likely to fight in many more battles against apostates and disbelievers. And if they too were going to die on the battlefield, particularly those among them that had the Quran memorized in its entirety, then the greatest tragedy of all, the one I just referred to, was likely to occur. यानी ये जंगों का और गजवा का किस्सा तो चलते रहना है, दुश्मन आते रहेंगे, और ये जो हुफाज थे, शहबाज थे, जो सोल्जर्स और आर्मी वाले मैन थे, इनका मरना भी या इनका भी शहीद होना वाज मोस्ट प्रोबेबल। तो इससे क्या होगा कि सम चैप्टर, सम वर्सेस, या वो साहबाज जिन्होंने पूरा एंटायर कुरान मेमोराइज किया हुआ था, तो वो ख़त्म हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत बड़ा लॉस था। तो इसके लिए कुछ करना था। द फर्स्ट पर्सन टू परसीव नॉट ओनली द डेंजर ऑफ द सिचुएशन बट also the necessity of taking immediate and decisive action was Umar bin al-Khattab रदियल्लाहु अन्हु। अब आप देखिए, इस इतने इम्पोर्टेंट सिचुएशन को या इतने इम्पोर्टेंट नुक्ते को जिसको समझना था, उन ये इतनी पूरे ग्रुप में से किसको ये क्लिक हुआ? ये उमर इब्न खत्ताब को, इनके ध्यान में आया कि ये हमें कंपाइल करना ज़रूरी है, वी हैव टू प्रिजर्व द कुरान। यानी आप देखें, आई ऑलवेज से दैट एक इंटेलेक्चुअल लेवल, एक नॉलेजेबल पर्सन, एक कॉन्शियस बंदा, जिसका जो ब्रेन पावर है ना, वो इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस, इन द मोमेंट ऑफ नीड, इन द मोमेंट ऑफ अ रिलैक्स स्टेट, वो उस बातों को सोचता है और उस बातों के ऊपर अमल करके हाउ ही इम्प्लीमेंट्स और एग्जीक्यूट्स द प्लान। दिस इज समथिंग विच इज अगेन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। सबका दिमाग इस तरीके से नहीं चलता, सब लोगों का जो ब्रेन है वो सल्यूशंस, आइडियाज या किसी खतरे को भांप नहीं सकता। देर आर वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स who possess such a quality, and subhanallah, उमर इब्न al-Khattab रदियल्लाहु अन्हु was one of them। कि जब हम नॉर्मली किसी जंग के बाद माल गनीमत या लॉस ऑफ लाइफ या उन सारी चीज़ों के पीछे सोच रहे होते हैं, उनका दिमाग कहाँ पर दौड़ा कि वी हैव टू प्रिजर्व द कुरान। Shortly after the Battle of Yamama took place, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu summoned for Zayd bin Thabit al-Ansari radiallahu anhu to come to him. When Zayd radiallahu anhu went to Abu Bakr radiallahu anhu, he saw Umar radiallahu anhu sitting down beside him. Abu Bakr radiallahu anhu then said to Zayd radiallahu anhu, verily, Umar radiallahu anhu came to me and said, many of the Quran, those who had the Quran memorized in his entirety, died on the day of Yamama. And I fear that many other Qur'an will die in future battles and conflicts, and the dangerous results of that will be the loss of much of the Quran. Therefore, I think that you should order someone or some committee of people to gather the Quran from what is written on it, on leather parchments and bones, and from what is preserved in the hearts of the men. अभी जैसे ही उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने ये सजेस्ट किया अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को, उन्होंने जैद बिन साबित अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु को बुलाया, फिर उन्होंने उनको एक्सप्रेस किया कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने ये कंसर्न जाहिर किया है कि बैटल ऑफ यमामा में बहुत सारे कुरा जो है वो शहीद हो गए हैं, और कहते हैं ये जो सिलसिला है ये आगे भी काफ़ी सारे जंगों और गजवात में काफ़ी सारे शहीद होंगे, तो हमें जो है कुरान को प्रिजर्व करना है। तो कहते हैं कमेटी बनाओ, लोगों को इकट्ठा करो और ये काम के ऊपर लग जाओ। I said to Umar radiallahu anhu, how can I do something that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam did not do himself? Umar radiallahu anhu said, by Allah, this is something good that you must do. Umar radiallahu anhu continued to come back to me with the same advice until Allah subhanahu wa ta'ala opened my heart to the same idea to which Allah subhanahu wa ta'ala had opened Umar's heart, and I came to hold the same opinion that Umar had regarding the gathering of the Quran. Up until this point, Zayd radiallahu anhu probably had no idea of what was coming next. He radiallahu anhu was about to be assigned the greatest and the most important mission of his entire life. आप इनका तरीकाकार देखें। अब उमर रदियल्लाहु अन्हु को जो ये आइडिया ये आया, जो ये थॉट
अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनके दिल और दिमाग में ये थॉट डाला, ठीक है। एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब जब ये वो सजेस्ट कर रहे हैं, तो what is Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu is saying and what is Zaid bin Thabit al Ansari radiallahu anhu is saying कि अगर ये सही होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने टाइम में ये क्यों नहीं करवाया। उस पर उमर रदियल्लाहु अन्हु is saying कि ये जो है इसमें खैर है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसके लिए मेरे दिमाग में पॉजिटिविटी दी है, विच मीन्स यू ऑल्सो विल गेट दिस एट द राइट टाइम। एंड बार बार उमर रदियल्लाहु was constantly expressing this concern, and eventually over a period of time, subhanallah, Allah azza wa jal opened their hearts too for the same thing। यानी आप देखिए तरीकाकार कितना जबरदस्त है। उमर इब्न खत्ताब got inspired and he is suggesting, लेकिन ये जो साहबाज हैं ये लोग भी ऑन द स्पॉट एक किसी पॉइंट को पकड़ के चलने नहीं लगते कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु इज आल्सो वेरी पावरफुल कैरेक्टर, उन्होंने अगर कुछ सजेस्ट किया है तो उन्होंने बोला है तो कर पड़े, नहीं। उनका स्टेटमेंट क्या था, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से ये काम क्यों नहीं करवाया, क्योंकि तब तक के अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इनके दिल और दिमाग को इस पॉइंट के लिए नहीं खोला था। एंड उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु मुसलसल कंसिस्टेंटली ही इज suggesting and he's expressing his concern. Eventually, subhanallah, Allah Azza wa Jal opened their hearts and minds too. अब जब सबके दिल और दिमाग इस पॉइंट पर खुल गए बेइज़्निल्लाह, तो उन्होंने फिर इसको टास्क लेना शुरू किया। अब ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अग्री किया इस टास्क को अपने हाथों में लेने के लिए, तब उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना जाइजेंटिक या कितना इम्पोर्टेंट टास्क है। बट एज एंड व्हेन ही स्टार्टेड गेटिंग ऑन द जॉब, ही रियलाइज्ड इट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, एंड ही सेइंग दैट दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन ऑफ हिज एंटायर लाइफ। अब आप समझे, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टुकड़ों में है कुरान की वर्सेस एंड सूरा, और उसको पूरा अच्छी तरह से सही तरीके से क्रोनोलॉजिकली कंपाइल करना, यानी एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी 100% एक्यूरेट, तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। Abu Bakr radiallahu anhu went on to say, verily, you are a young man who is wise and intelligent, and we have nothing to accuse you of. And you used to write down revelations for the Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam. Therefore, search out for the various parts of the Quran and gather them all into one book. Zayd radiallahu anhu replied, by Allah, had you changed me with the task of moving a mountain from one place to another, you would not have placed a greater burden than you have placed upon me now by ordering me to gather the Quran. Abi Zayd radiallahu anhu was the one who used to immediately record the revelation, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं भी उन पे डिपेंड करते थे। ये वाज वन ऑफ द सहाबा जिसको वो रिकॉर्डिंग के लिए, राइटिंग के लिए यूज़ किया करते थे। तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु इज अगेन टेलिंग हिम, ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु को, कि यू आर इंटेलिजेंट, आप यंग हो, वाइज हो, इंटेलिजेंट हो, एंड वी नो दैट यू यूज टू राइट, आप जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी रेवलेशंस दिखा करते थे, तो इसीलिए आप जो है डिफरेंट पार्ट्स, वेरियस पार्ट्स में जाओ और ये कुरान को गैदर करो एक बुक के शक्ल में। अब ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अगर आपने मुझे एक टास्क दिया होता कि एक माउंटेन को मूव करूं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो मेरे लिए शायद आसान होता, बल्कि ये जो टास्क है ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सो दैट्स इन शॉर्ट द स्टोरी ऑफ हाउ इट हैपेंड, एंड फिर कैसे उमर इब्न खत्ताब से, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। एंड आज जब आप कुरान पढ़ते हो तो उसका आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये इतनी आसानी हुई है, एंड दुआ करें फॉर ऑल द पीपल, ऑल द सहाबाज जो इन्वॉल्व थे, कि हमारे लिए इतनी ईज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मे we read Quran, may we include Quran in our lives forever and ever, and may that Quran जो है हमारे हक में हमारे लिए गवाही दे या रब। On that note, I would like to end today's session. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. अगर कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, तो we can discuss. If not, then inshallah we will meet tomorrow. Hello, Dr. Nasreen. Like I would ask, I actually want to know some details regarding the post which you had sent on Yes, how to yes, discipline our children.
in that there was a point which says that see if your child is seeking attention. So I just want to know, like when we seek our child, whether he's needing our attention or not, what is the meaning of that? I mean, what does the child need from us that he is seeking our attention? Can you please tell me that? Jazakallah khair. Yeah, see, seeking attention means most of the time, right from their toddler age to their adolescence, बच्चे जो है ना रिएक्ट कब करते हैं पता है, वाइल्डली व्हेन दे थ्रो टैंट्रम्स बिकॉज दे वांट टू सीक योर अटेंशन. अब सीकिंग अटेंशन के माने ये होता है बिकॉज वी एज वाइफ्स, as mothers to other children, also as other children's mothers too, we are engaged. हम जो है ना, हमारे पास टाइम की किल्लत होती है, हम जितना अटेंशन उनको देना चाहिए उतना हम दे नहीं पाते, और हमारे लिए भी इट इज नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल, क्योंकि वी हैव अदर चिल्ड्रन, वी हैव अदर टास्क टू डू. तो हम हर एक को जो है ना लिमिटेड टाइम अलॉट करके रखते हैं. और कुछ मदर्स जो होती हैं वो वाइज होती हैं, दे नो हाउ टू प्रायोरिटाइज. यानी नाउ इफ यू हैव अ स्मॉल इन्फेंट और अ टॉडलर एंड यू हैव लिटिल बिगर ट्वीन्स या टीनेज बच्चे हैं, तो यू नो किसको हमारी कितनी जरूरत है, हम उसको अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं. बट काफी सारी मदर्स जो है वो दे फेल टू बैलेंस देयर टाइम मैनेजमेंट. उनके पास ना उस तरीके से वो टाइम मैनेज नहीं कर पाती. अब सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होना is not something which is counted. फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको हर एंगल से मौजूद रहना है उस बच्चे के सामने, ताकि वो ऐसा कुछ एक्शन ना करे कि वो आपको अटेंशन सीख करना पड़े, उसको चीखना, चिल्लाना या टैंट्रम्स क्रिएट करना पड़े ताकि आप उस पर मुतवज्जे हो. इफ यू आर अ स्मार्ट मदर, उससे पहले ही आप उसको उसका टाइम देके उसको कंप्लीटली फुल करके आप रखोगी. That is the whole idea. Because anytime you see, whenever somebody is acting like this, the kids especially throwing tantrums, they are seeking attention because they feel complexed, they feel compared, they feel left out. उनको left out नहीं feel So करा. this happens only in small children, or it happens even as the child is growing up into teenager? In every stage. And even It happens in every stage. It happens जब infant है तो definitely they seek your attention. उसके बाद ये हर एज में चलता है. इनफैक्ट आई विल नॉट कन्फाइन इट ओनली टू किड्स, इवन अवर स्पाउसेस, इवन अवर सिबलिंग्स, इवन अवर पेरेंट्स, हर रिलेशन फील्स लेफ्ट आउट. और अटेंशन सीख करने के लिए फिर वो ग्रम्बल करते हैं, फिर वो चिल्लाते हैं, फिर वो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं. मैं कहती हूँ कि आप यू बी प्रोएक्टिव, यू बी सुपर स्मार्ट, यू बी मोर गुड इन टाइम मैनेजमेंट. आप ना रिलेशनशिप्स को तरजीह दीजिए दूसरे कामों से. यानी कई बार मैंने देखा है अपनी सिस्टर्स जो है ना वो सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करने के पीछे भागती हैं. मसलन खाना दे दें, बेसिक खाना दे दें, या उनको कपड़े दे दें, या उनको चीजें लाकर दे दें, या उनके पीछे पड़े कि भाई अपने स्कोर्स अच्छे हों, मार्क्स अच्छे हों. लेकिन वो बच्चे की इमोशनल नीड्स के बारे में हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते. मसलन आप उनके साथ दिन में बैठ के उनको कितनी दफा हग कर रहे हो, कितनी दफा उनको गले लगा रहे हो, कितनी दफा किस कर रहे हो, कितनी दफा अपने स्पाउस को फोन करके आई लव यू बोल रहे हो या थैंक यू बोल रहे हो, कितनी दफा अपने पेरेंट्स को फोन करके उनको आप थैंक कर रहे हो, उनके लिए दुआ कर रहे हो. यानी हम ये सारे जो इंपॉर्टेंट नुक्ते होते हैं ना उस पे हम ध्यान नहीं देते. हम सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों को फिलफिल करते हैं और फिर हम सोचते हैं हमने हमारा काम कर दिया. डेफिनेटली दैट इज देयर, उसका एक अपना मटीरियलिस्टिक चीज का एक अपना हिस्सा है, लेकिन इमोशनल रिक्वायरमेंट उसको भी फुलफिल करना है. और वो अगर जब खाली रह जाती है ना तो ये खाना पीना डजंट मैटर अ लॉट. इमोशनल खाला विल मेक द पर्सनालिटी चेंज, और उसको हमें ना उस क्वेश्चन को हमें फुलफिल करना है. तो दूसरी जरूरतों के साथ साथ इमोशनल नीड को आप इंपॉर्टेंस दीजिए. और ये जो फिजिकल टचेस जो है ना दे मैटर अ लॉट, एंड द ब्यूटीफुल वर्ड्स दैट कम्स आउट ऑफ आवर माउथ दैट मैटर्स अ लॉट. सो कीप रिमाइंडिंग योर चिल्ड्रन, एनकरेज देम पॉजिटिवली, हग देम, किस देम. बड़े भी हो गए तो उनके माथे पे किस करें. मेक अ हैबिट कि वो आकर आपके माथे पे किस करें. इस तरीके की चीजें जो है ना ये बॉन्डिंग एनहांस करेगी. Inshallah. Yeah, we failed to do that. Yeah, thank you so much for this point. And in case if we have time, we can discuss the next point, or inshallah we'll do it tomorrow. नहीं, आप करें, कोई मुश्किल नहीं. अभी जब तक I don't get a call from my baby, continue. Inshallah. Next point is to determine if your child is seeking power. So what is that meaning, Nasreen? Which I said na कि they need, like for example, in a good parenting, we have to give responsibility to the child. We have to give him the power to take certain decisions and opinions. यानी जब वो अपनी उस एज में पहुंच जाते हैं ना कि जहां पर वो अपने decisions ले रहे हैं, तो उनको उनका कॉर्नर देना है आपको. यानी डोंट लिव, उनको है ना एक ऐसी
अननेसेसरी या जिनके पास ब्रेन नहीं है ऐसा समझ के नहीं छोड़ना है. यू हैव टू लुक एट देम एज यंग एडल्ट्स. उनको अपना रिस्पेक्ट भी Okay. चाहिए, उनको प्यार और कंसर्न के साथ साथ रिस्पेक्ट एंड ऑनर भी चाहिए. ठीक है, तो आप उनको ना एक अपना कॉर्नर दें. जैसे अगर अभी एक रूम है आपके पास, आपके 3-4 बच्चे हैं, ईच चाइल्ड विल हैव देयर ओन कॉर्नर. उनको उनकी चीजें, फॉर एग्जाम्पल उनका कबर्ड, उनका बेड, उनका स्टडी टेबल, उनकी एक एक चीजें देंगे. आप उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालेंगे, आप उनको पावर देंगे कि वो सिलेक्ट करें कौन सा कलर आपको चाहिए आपकी बेडशीट का. यानी मैं ये स्मॉल स्मॉल चीज बता रही हूँ जहां पर आप उनकी स्पाइन बिल्ड कर रहे हो और आप उनको ना डिसीजन लेने वाला बना रहे हो. You decide everything for them, you will plan everything for them. Yes, you can guide them, but आपको उनको एक इंडिविजुअल एडल्ट की तरह भी ट्रेन करना है ताकि वो अपना डिसीजन अपना डिसीजन ले. और आप उनको ना अपनी गोदी में बिठा के नहीं रखेंगे हमेशा. आप उनको ममाज बॉय नहीं बनाएंगे, सीरियसली ममाज बॉय एंड ममाज गर्ल्स नहीं बनाएंगे. आप उनको ऐसा ट्रेन करेंगे कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो सके और उनकी चॉइसेस जो है ना, आप उनको कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे. ये सही है, ये गलत है, ये हलाल है, ये हराम है. इस्लाम सेज दिस, साइंस सेज दिस, दिस इज द सोशल कल्चर, ये हमारा कल्चर है. और फिर आप उनको उस तरीके से डिसाइड करने का मौका देंगे, आप उनको रिस्पेक्ट देंगे. आप उनके साथ जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए. लाइक आई ऑलवेज एनकरेज कि आप अपने बच्चों से बड़े तमीज से बात करें, आपसे, जनाब से, तू, तड़ाक, ये सब ना करें. यू आर किलिंग देयर पर्सनैलिटी इफ यू डू दैट. दूसरा ये, द मोमेंट दे आर एबल टू टेक द डिसीजन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं, एक्नॉलेज इट, अप्रिशिएटेड. ओवर एप्रिसिएशन नहीं, अगेन आई एम सेइंग ओवर कोई काम नहीं, सब चीज बिल्कुल लिमिट में महदूद होकर. ठीक है, अदल के साथ, बैलेंस के साथ. एंड देन दे आर हैप्पी individuals as a young adult. Okay, and then the next point, Nasreen, it is to avoid accepting your child's bait to argue. Yani, there are certain points when I say that you will be giving them respect, you will be giving them the power to take decision. At the same point of time, आपको भी ये बताना है कि अपनी importance क्या है. यानी उनकी हद इतनी तक है और उसके बाद आपका decision is the final decision. So the main reins are in your hand. You are the decision maker. Finally, जो important matters है या उनकी हद कहाँ तक है. जैसे for example, you are giving them an accessibility on net. You will decide how many hours they will use the net. You will decide what sites they will visit. And in between, you will keep a check and a tab. कि भाई आप history check कर रहे हो. उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके ऊपर आप हो. आप आंख बंद करके बैठ के उनके हाथ में नहीं दे रहे हो डोर आपके ही हाथ में. आप उनको सिर्फ, जैसे हम पतंग, जब हम आपने उड़ाई होगी पतंग कभी या सुना होगा कि वो कैसे होती है. तो हम ढील देते हैं. वो हवा में लहरा रही है, वो अपनी जगह पे घूम रही है, आराम से जा रही है. जहां मौका देखा खींचते भी है, तो खींचना हमें है, वो डोर हमारे हाथ में रखनी है. Yeah, so that they should know that no matter whatever I have been given the privileges, right? But at the same time, the final decision is in mother's hand, and she can pull me anytime, she can stop me anytime. तो वो authority अपनी खोना नहीं हमको. जी आपका बहुत जज़ाकल्लाह खैर. और one request, when we have a talk show, एक टॉपिक मेरे दिमाग में आया था, dignity, self respect versus ego. तो इसमें बहुत ही बारीकी है, लाइक सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट और अपना जो ईगो. तो ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया, तो आई थॉट आई विल इंशाल्लाह शेयर विद यू. इंशाल्लाह करेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को यानी समझना है और उसकी बारीकियों को, इंट्रिकेसीज को जानते हुए फिर हमको अपना पासा लेना है. तो इंशाल्लाह दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक. आई विल ट्राई टू स्पीक टू डॉक्टर सफीना. थोड़ा सा अगर मामला सेटल होता है तो देयर आर लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स दैट इज स्टिल पेंडिंग, यू नो. यानी एक तरबिया को लेके, एक स्पाउस के रिलेशंस को लेके, एक अपनी एक इमेज और एम्पावरमेंट जो है ना, जो हम अक्सर भूल जाते हैं, उसको लेके बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना होता है. तो इंशाल्लाह as and when time permits, इंशाल्लाह ताला we will take it up. But I mean, जज़ाकल्लाह खैर for the contribution. इंशाल्लाह जरूर करेंगे इसके ऊपर कुछ ना कुछ. I will Dr. Nasreen, जज़ाकल्लाह खैर for all your mashallah time and your efforts to inshallah to help us. Jazakallah khairan. May Allah reward you and family and your parents for this. Ameen. वाजमाइन वयाकी. इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस कबूल करे और हम लोगों को सदा जोड़ा रखे इंशाल्लाह ताला. और हम लोग जो है कुछ काम अपनी उम्मत के लिए करके जाएं, सवाब जारिया का इंशाल्लाह ताला इंतजाम करके जाएं या रब. जी इंशाल्लाह. ठीक है, तो इंशाल्लाह होती कल मुलाकात और ये सिलसिला चलता रहेगा. डोंट वरी, वी आर ऑल लर्निंग
एंड एवरी डे अगर हम इंशाल्लाह। बेबी स्टेप लेते हैं ना पॉजिटिविटी की तरफ और अच्छाई की तरफ और सिरातुल मुस्तकीम की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह, से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। सो इंशाल्लाह अल्लाह करीम, इंशाल्लाह वी विल इंशाल्लाह रीच देयर एंड अल्लाह हमसे बस राजी हो जाए यार। आमीन ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।